Assalamu alaikum students. In this video I will discuss the MCQs of gynecology and obstetrics, right? Starting with the question number 1. A couple present an OPD with the history of infertility since last 2 years. Husband semen analysis was advised. What is the WHO criterion for the minimum sperm count in normal semen? नॉर्मल सीमन में जो स्पर्म काउंट होता है नॉर्मली वो आपके पास क्या 15 into 20 million होता है, ठीक है. सो इट विल बी दी 20 million इज़ द राइट ऑप्शन, राइट. सो बी इज़ द राइट वन. Then we have the next question. A 23-year-old primigravida presents with the abdominal pain, syncope and the vaginal spotting. Assessment revealed that she has an ectopic pregnancy. The most common site for ectopic pregnancy is ampulla. Yeah, this is right. Ampulla of the fallopian tube is the most common because it is the widest part, right? Then next question है हमारे पास क्या, the mean age for the menopause is, it's around 51 to 52 years is the mean age for the menopause. So 51 is the right option, right? Then we have the next question. The second degree uterovaginal prolapse is characterized by. यूटीरोवैजिनल प्रोलेप्स में बेसिकली होता क्या है, जो पूरा का पूरा जेनाइटल ट्रैक्ट है वो आउट ऑफ द वेजिना जो है ना आपके पास क्या डिसेंड करके जाता है, ठीक है. सो इसमें क्या होगा बेसिकली कंप्लीट प्रोट्रूजन ऑफ द यूट्रस आउटसाइड द इंट्रोडस. इसमें पूरा जेनेटल ट्रैक्ट होता है, नॉट द यूट्रस ओनली, राइट. देन सेकंड है हमारे पास क्या, डिसेंड ऑफ जेनेटल ट्रैक्ट विद इन द वेजिना, आउट ऑफ वेजिना होता है. डिसेंड ऑफ जेनेटल ट्रैक्ट अप टू द इंट्रोइडस डिसेंड होता है और भी से. सो डिसेंड ऑफ जेनेटल ट्रैक्ट आउट ऑफ द इंट्रोइडस इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है. मैंने क्या कहा था कि वेजिना से आउटसाइड जो है ना आपके पास क्या वो उसका जो ना डिसेंड होता है, ठीक है, इन द यूट्रोवेजिनल प्रोलैप्स, राइट. सो डी इज़ द राइट ऑप्शन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, a 63-year-old lady presents with the abdominal mass and a fat loss was diagnosed as having ovarian tumor, right. एक जो ना ओल्ड लेडी आई है 63 उसकी एज है, ठीक है, एंड विद द फीचर्स ऑफ abdominal mass भी है उसको एंड वेट लॉस भी है, ठीक है. वो डायग्नोज कैसे कैसे ओवेरियन ट्यूमर का. मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर यहाँ पर पूछा है, ठीक है. मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर कौन सा होता है, एपिथेलियल ट्यूमर होता है, ठीक है. इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 75, ठीक है. 75% जो आपके पास क्या ओवेरियन ट्यूमर्स होते हैं आपके पास क्या एपिथेलियल होते हैं, ठीक है. एंड जो मीन एज होती है उसकी ओवेरियन ट्यूमर की वो अराउंड 64 ईयर्स होती है, ठीक है. सो इट विल बी दी एपिथेलियल ट्यूमर, राइट. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, अ यंग गर्ल 23-year-old presents with the complaint of abdominal pain, menorrhagia and 18 weeks size arising from the hypogastrium. Most likely diagnosis यहाँ पर 3 फीचर्स दिए हुए हैं, ठीक है. एक abdominal pain है कंप्लेन, सेकेंड इज़ द menorrhagia एंड थर्ड इज़ द मास. 3 फीचर्स, राइट. अब इनको ना कंपेयर करते हैं जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं. इन एंडोमेट्रियोसिस दी जो पेन होता है इट इज़ अ साइक्लिकल पेन, राइट. यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ कि इज़ इट अ साइक्लिक पेन और नॉट द साइक्लिक पेन, राइट. इन PID यहाँ पर हिस्ट्री होगी हमारे पास क्या, कोई डिस्चार्ज एंड देयर हिस्ट्री ऑफ द देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ द फीवर, राइट. सिस्टमिक अपसेट होगा उसमें, ठीक है. एंड इन ओवेरियन सिस्ट you have not the menorrhagia, right. And in fibroid uterus you have the abdominal pain, you have the bulk effect which is a mass effect, and you also has the menorrhagia. So it will be the fibroid uterus, right. D is the right option. Then next question है हमारे पास क्या, a 25-year-old school teacher para 1 wants to use oral contraceptive pills for contraception, right. She is asking about the mode of action of oral contraceptive pills. The mechanism of action of OCP is, OCP does what, they inhibit the ovulation. How they inhibit the ovulation, they inhibit the serum FSH levels, right. So inhibiting the ovulation by suppressing the serum FSH levels is the right option, right. They doesn't induce the endometrial atrophy or increase the cervical mucous hostility and induce the endometritis, not and inhibiting the prolactin, right. Then next question है हमारे पास क्या, a woman
complaining of milky whitish discharge with a fishy odor, no history of itching, most likely diagnosis this is जो ना bacterial vaginosis, right? Because there is no history of जो ना आपके पास क्या itching, so it will not be the candidiasis, right? And in trichomoniasis उसमें जो ना आपके पास क्या जो डिस्चार्ज होता है वो आपके पास क्या ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है, ठीक है. सो इट विल बी दी बैक्टीरियल वैजिनोसिस. Then we have a next question. A medical student जो है ना has come to you with the complaints of oligomenorrhea, hirsutism, vagin and ultrasound reveal bulky ovaries with a subcapsular cyst. These are the features of polycystic जो है ना आपके पास क्या ovarian disease PCOS के features हैं. Oligomenorrhea, irregular menstrual periods, right? Hirsutism due to the आपके पास hirsutism and weight gain. एंड वेट गेन आपके पास क्या किसकी वजह से होगा? ड्यू टू द इंसुलिन रेजिस्टेंसी. इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है इन दी आपके पास क्या PCOS, तो वेट गेन उसमें होगा, ठीक है. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ PCOS. यंग पेशेंट आएगी आपके पास क्या विद ओलिगोमेनोरिया, हिर्सुटिज्म एंड ऑन अल्ट्रासाउंड यू मे हैव द सिस्ट, सो इट विल बी द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या. A 43-year-old lecturer has come to you with the complaints of heavy but regular menstrual periods. Menstrual period heavy हैं but regular हैं, ठीक है, ठीक है, with the floods and clots. There is no anatomical reason for heavy flow. The most effective remedy for reducing her menstrual flow. यहाँ पर आपने क्या करना है, menstrual flow बहुत ज़्यादा है लेकिन periods regular हैं. जस्ट आपने क्या करना है, मेंस्ट्रुअल फ्लो को कम करना है. मेंस्ट्रुअल फ्लो को कैसे कम करेंगे? विद द ट्रांजामीन, राइट. ट्रांजामीन उसको देंगे, ठीक है. ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है. डायलेशन इन क्यूरेटाज यहाँ पर नहीं करें बिकॉज वी हैव ओनली जो ना टू रिड्यूस द फ्लो, राइट. सो ट्रांजामीन उसको दे देंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या. 39-year-old woman para 6 has presented with the complaint of post-coital bleeding, right, for the past 3 months. Your first investigation should be, remember, the post-coital bleeding is a feature of cervical जो ना आपके पास क्या pathology, right. So we will go for the first investigation. हमारे पास क्या होनी चाहिए? It would be the pap smear, ठीक है. pap smear अगर आपके पास क्या मतलब एबनॉर्मल आता है, सो वी विल गो फॉर द कॉल्पोस्कोपी, ठीक है. फर्स्ट लाइन हमारे पास क्या होगी, जो ना पेप स्मेयर होगी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या. 28-year-old वुमेन हैज़ 14-week साइज इर्रेगुलर यूट्रस शेडो. शी डज नॉट कंप्लेन ऑफ अब्डोमिनल पेन एंड मेनोरेजिया. यहाँ पर जो ना आपके पास क्या यूट्रस इरेगुलर साइज्ड है, 14 वीक, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब्डोमिनल पेन एंड मेनोरेजिया नहीं है, ठीक है. हर पेप स्मेयर इज़ आल्सो नॉर्मल. द बेस्ट नेक्स्ट स्टेप इन हर मैनेजमेंट वुड बी, यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिया हुआ है, इरेगुलर यूट्रस का साइज़ दिया हुआ है, ठीक है. अब्डोमिनल पेन एंड मेनोरेजिया नहीं है. सो जो आपके पास क्या फाइब्रॉइड यूट्रस है वो आपके पास क्या रूल आउट हो गया, ठीक है कि वो नहीं है, ठीक है. सो पेप स्मेयर भी नॉर्मल है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, वी विल गो फॉर द पेल्विक अल्ट्रासाउंड, ताकि हम उसको ना देख सकें कि यूट्रस में कोई और तो पैथोलॉजी नहीं है, या फिर आपके पास क्या शी माइट बी प्रेग्नेंट, राइट, और एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है. सो विल गो फॉर द पेल्विक अल्ट्रासाउंड. हमारे पास क्या नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन वही होगी. देन वी हैव another question. The most effective treatment of pruritus vulvae associated with the atrophic वेजिनाइटिस. मोस्ट इफेक्टिव इसमें जो ट्रीटमेंट होता है आपके पास क्या टॉपिकल एस्ट्रोजन थेरेपी होती है, ठीक है. विल गो विद द टॉपिकल एस्ट्रोजन थेरेपी, राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या. 28-year-old पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ एमेनोरिया आफ्टर हैविंग द डायलेशन एंड क्यूरेटाज. द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस आफ्टर हैविंग डायलेशन एंड क्यूरेटाज को ना एमेनोरिया हो गया, ठीक है. इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है इज़ द एशरमैन सिंड्रोम, राइट. सो सी इज़ द राइट ऑप्शन. आफ्टर डायलेशन एंड क्यूरेटाज आपके पास क्या एमेनोरिया इज रिलेटेड टू द एशरमैन, राइट. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है. लार्ज सिस्टिक ओवेरियन ट्यूमर इज डिटेक्टेड इन अ वुमन ऑन रूटीन एंटीनेटल चेकअप. द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन शी हैज़ इनकाउंटर इन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ जो ना आपके पास क्या
cystic ovarian tumor, most likely would be it would be the rupture, right? And torsion is associated with the जो ना आपके पास क्या डर्मोइड जो सिस्ट होते हैं उसके साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछिए, एंड इट वुड बी द रप्चर, राइट? And after rupture you can have the hemorrhage as well, right? So it will be the rupture. Next question हमारे पास क्या, which of the following is used to take the cervical smear? We use the IS spatula, ठीक है, C is the right option. Then we have the next question, normal duration of the menstrual cycle, it is about 2 to 7 days. 2 to 7 days तक menstrual cycle चल सकती है. Then next question है, and a 20-year-old medical student presents with a 5-year history of weight gain. weight gain की history है, irregular periods हैं and worsening facial hairs. weight gain, irregular periods which will be the oligomenorrhea and worsening facial hairs, hirsutism भी है, ठीक है। तीनों फीचर्स किसके थे, PCOs के थे, ठीक है। सो इट विल बी द PCO. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 28-year-old woman with the previous history of having a baby with the Down syndrome, previous history दी डाउन सिंड्रोम की, ठीक है, बेबी में, and is now 12 week pregnant है, ठीक है। which of following would you suggest her? we will suggest the CVS because डाउन सिंड्रोम को रूल आउट करने के लिए हम CVS is the best one, right? CVS is the right option. Then we have the next question, a newly married girl come to gynae OPD with the history of dysuria, burning micturition and sore perineum. what is your likely diagnosis? यहाँ पर क्या है, UTI है, ठीक है, बर्निंग मिक्चुरेशन भी है, डिस्यूरिया भी है। यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, शी इज़ न्यूली मैरिड गर्ल। न्यू मैरिड गर्ल में UTI को हम क्या बोलते हैं, हनीमून सिस्टाइटिस बोलते हैं, ठीक है। इट विल बी द हनीमून सिस्टाइटिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ACTH ग्रोथ हार्मोन. इट विल रिलीज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, राइट, जो ना उसको ना स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, उसकी रिलीज को. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरम प्रोलैक्टिन लेवल आर हाईएस्ट इन फॉलोइंग कंडीशन, मेनोपॉज, ओव्यूलेशन, पार्चुरेशन, स्लीप एंड द रनिंग. इट्स हाई इन द पार्चुरेशन पीरियड, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, द मेन यूट्राइन सपोर्ट इज यूटेरोसैक्रल लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, सर्वाइकल लिगामेंट, लिगामेंट्स एंड ब्रॉड लिगामेंट. यूजुअली जो ना आपके पास क्या मेन सपोर्ट इसका क्या होता है, इज इट्स अ सर्वाइकल लिगामेंट, राइट. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इन 13-year-old गर्ल. यहाँ पर ये क्या एज क्या है बच्ची की, इट्स अराउंड 13 ईयर. इज इट अ यूट्राइन कैंसर? यूट्राइन कैंसर तो नहीं हो सकता, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकती, ठीक है, ये दोनों रूल आउट हो गए. एन ओव्यूलेशन, या दिस इज़ राइट ऑप्शन बिकॉज सिस्टमिक ब्लीडिंग डायाथिसिस अगर होती तो वो उसमें ना क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, ठीक है. एन ट्रॉमा भी नहीं हो सकता, ठीक है. एन ओव्यूलेशन की वजह से जो ना यंग बच्ची में जो ना आपके पास क्या ब्लीडिंग होती है, ठीक है. सो एन ओव्यूलेशन इज़ द राइट ऑप्शन. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, which of the following pubertal event would occur even in the absence of ovarian estrogen protection? अगर ओवरी आपके पास क्या प्रोड्यूस नहीं कर रही जो ना एस्ट्रोजन, तो कौन सा यहाँ पर जो ना इवेंट होगा, थैलार की, मिनार की, प्यूबर की, स्केलेटल ग्रोथ ऑफ द वेजिनल कमीफेक्शन, ठीक है. यहाँ पर आपके पास क्या प्यूबर की आपके पास क्या विदाउट एस्ट्रोजन प्रोडक्शन होती है, ठीक है, बिकॉज जो एस्ट्रोजन है आपके पास क्या एड्रिनल ग्लैंड से थोड़ा थोड़ा बनता है उसमें, ठीक है. सो इट विल बी दी प्यूबर की. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 58-year-old woman हैज़ प्रेजेंटेड विद द कंप्लेन ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग फॉर पास्ट 2 weeks. पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, रिमेंबर इट्स अ फीचर ऑफ uterine malignancy, right. The most essential investigation would be colposcopy, जो ना आपके पास क्या सर्वाइकल कंडीशन पैथोलॉजी में करते हैं, पेप्समेयर भी उसमें करते हैं, ठीक है. कि कौन बायोप्सी यहाँ पर नहीं करेंगे, डायलेशन एंड क्यूरेटाज, और जो ना आपके पास क्या इसको हम जो ना एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी बोलते हैं. सो वी विल डू दैट डायलेशन एंड क्यूरेटाज. हिस्टेरोस्कोपी यहाँ पर नहीं करेंगे बिकॉज हमने जो ना आपके पास क्या यूट्रस को विजुअलाइज नहीं करना सिर्फ और सिर्फ,
हमने यहाँ पर आपके पास क्या है, बायोप्सी का सैंपल भी लेना है वो, सो आई विल डू द डायलेशन इन क्यूरेटाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसका, द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया इज वेजिनल, जो ना आपके पास क्या, ब्लीडिंग, राइट। हाइपरप्लेजिया की जो फीचर होता है वो आपके पास क्या, वेजिनल ब्लीडिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, a 56-year-old woman has come to you with a complaint of hot flashes, irritability, joint pain, and the lack of the sleep. Most appropriate treatment would be आपके पास क्या, ये फीचर्स हैं किसके, दीज आर द फीचर्स ऑफ जो ना मीनोपॉज, ठीक है। हिस्टेक्टमी भी नहीं करेंगे, वाइटामिन भी नहीं देंगे, विल गो फॉर द कंबाइंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन प्रिपरेशंस, राइट। कंबाइंड और जो ना आपके पास क्या, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो ना आपके पास क्या, उसके प्रिपरेशंस देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। COCP नहीं करते, प्रोजेस्टेरॉन ओनली भी नहीं करते, एंटीपोप्रोवा भी नहीं करते, वी यूज़ लेवोनॉर्गेस्ट्रल, जिसको हम EM किट भी बोलते हैं, ठीक है। लेवोनॉर्गेस्ट्रल इज़ द एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। अगोमेट्रिन भी नहीं है, ठीक है। सो D इज़ द राइट ऑप्शन।